कलाम से हम सीखेंगे। Okay, so now chapter 3 was about Yeshua going, getting baptized, and going for 40 days and 40 nights in the desert. तो तीसरे अध्याय में यीशु मसीह जो जंगल में गए और उन्होंने दुआ की और उनका बपतिस्मा हुआ और फिर खुदा की पाके रूह कुव्वत उन पर उतर आई। And then chapter 4 is about him coming back to his village in Nazareth and entering the synagogue and people not accepting him. और चौथे अध्याय में वो अपने शहर में आए और वो वहां मदरसे में वो कलाम सिखा रहे थे लोगों को, लेकिन लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। And now we've reached chapter 5 where he actually starts his ministry of preaching the gospel. और अब 5वें अध्याय में आते कि जहां से उन्होंने खुदा का कलाम सिखाने की शुरुआत की। So now in chapter 5, let's read verse 1. Okay. Verse 1 says, sorry. Go ahead. Luke chapter 5 from verse 1. जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गेंग्रस की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। ओके, ठीक है। आमीन। Amen. So it says that here, I read it in the Hebrew also. लिखा है, वही काशर नी दखाक हामोन हाम लिश्माआ एत दवार हाइलोहिम वेहू उमेद अलियाद योम ना नगसार. So it came to pass, it happened that as the people carry on, that as the people came and pressed him, they were crowding on Yeshua to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret, or the lake which we call the lake of Galilee. तो गलील के झील पर वे आए और लोग भीड़ इकट्ठा हुई और वो खुदा का कलाम सुनना चाहते थे उनकी ओर से। Now his hometown is a village called Nazareth, which is high up in the mountains. और यीशु मसीह का जो अपना गांव था, मुल्क था, वो उस पहाड़ के ऊपर था जिसे नासरत कहा गया। But this town and this village is much lower down towards the lake of Galilee or Gennesaret, which is touching the water. पर ये जो गलील जो झील के पास था, ये उस किनारे के करीब था जो पानी को छू रहा था वहां पर। And why has Yeshua come to this village which is touching the water? और यीशु इस गांव में क्यों आए जो पानी को छू रहा था? Because all these small villages around the lake were all fishing villages. क्योंकि छोटे-छोटे जो झील के किनारे छोटे-छोटे मुल्क थे, वो सारे मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे। And they were all fishermen and they were all traders in fish, and so there was a constant movement of people in these towns and villages. तो वो मछुआरे थे, मच्छी पकड़ते थे और मच्छी लेन-देन का बिजनेस करते थे, इसलिए वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी। And here was the place where you would see all the tax collectors and the people, officials, and a whole lot of government officials collecting money and tax and doing trading. यहाँ पर हम देखते थे बहुत सारे जो उस्ताद थे, जो सरकारी अफसर थे और जो सरकारी लोग थे जो मसूल इकट्ठा करते थे, वो बहुत सारे लोग वहां जमा होते थे। So this was the best place, the ideal place for Yeshua to come to meet maximum people and to talk to maximum people. तो ये बहुत ही उम्दा जगह थी, जहाँ एक बेहतरीन जगह थी, जहाँ यीशु आ सकते थे और ज्यादातर बड़ी भीड़ से बातें कर सकते थे। So we hear exactly
why Yeshua is here now, because he has a purpose and he has a strategy of how to meet new people and spread the word of God among them. तो यीशु के अपने पास तालीम पाई थी उन्होंने, उनके बहुत अक्लमंद थे और वो जानते थे कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहाँ पर वो मिल सकती है और खुदा का कलाम उन्हें सिखा सकते हैं। So he sees two ships standing out there where there is no fishermen, because the fishermen have left for the day already or doing something else. तो वहाँ दो कश्तियों को देखा, वहाँ खड़े हुए और वहाँ के जो मछुआरे थे वो निकल गए थे क्योंकि शाम हो चुकी थी। And then he enters these two ships, and one of these ships was owned by Shimon Kifa. और वो एक कश्ती में जाते हैं और एक शिमोन का जिसका मालिक था वो था शिमोन ईफा। Kifa. Shimon Kifa, कीफा, which is Simon Peter, actually, which is written in English as Simon Peter, but in Hebrew it is Shimon Kifa. तो इब्रानी भाषा में शिमोन कीफा गया, अंग्रेजी में से साइमन पतरस कहते हैं हम। And then he urged Simon, he said, Simon, put the boat a little out from the land, and from that boat the Lord spoke to all the people out there. तो शिमोन से दरखास्त की कि कश्ती को थोड़ा जमीन से दूर ले लो, और उस कश्ती पे खड़े रह के उन्होंने सारे लोगों को खुदा का कलाम की तालीम दी वहां पर। Now, just imagine, in those days, they never had electricity, they never had mics, they never had speakers, they never had technology. Yeshua was talking to so many people and everybody heard him. तो आप सोचिए कि उन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और ना कोई माइक था, आज के जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, और यीशु कश्ती पर खड़े रह के इतनी सारी भीड़ को तालीम दे रहे थे। And there were a lot of people. It's very difficult to speak to even 100 people because your voice has to travel to everybody. तो ऐसे माहौल में 100 लोगों से बात करना भी नामुमकिन है, क्योंकि आपकी आवाज चारों तरफ फैलना चाहिए, पर यीशु ने बड़ी भीड़ को तालीम दी उस कश्ती में खड़े रहकर। And now the Bible doesn't tell us how long he was speaking to these people. It does not tell us. तो बाइबल शरीफ हमें ये नहीं बताते कि कितने देर तक यीशु ने उनसे बातें की, उसके बारे में लिखा नहीं है। And it does not even tell us what he was speaking to these people. और ये भी नहीं बताते उन्हें किन चीजों की तालीम दी उन्हें। There are so many things that Yeshua said and done which is not recorded. और यीशु ने इतनी सारी तालीम दी, बातें सिखाई, जो सारी बातें लिखी हुई नहीं है। So these are one of the places out here. तो उनमें से ये एक ऐसी जगह है। Now, if you read in verse 4, it says, and when he had left speaking, means he had finished his discourse, finished his sermon, he said to Shimon, he says, take the boat out into the deep portion of the water and throw in your nets so that you may get a catch of fish. और तालीम देने के बाद में यीशु ने शिमोन से कहा कि अपनी जहाज को उस गहरे पानी में लेके जा और वहां अपनी जाले डालो मच्छी पकड़ने के लिए। Now this is very interesting. What is Yeshua trying to do? What is Yeshua trying to show Shimon Kifa? तो ये बहुत दिलचस्प की बात है कि यीशु क्या करना चाहते थे और शिमोन को क्या दिखाना चाहते थे। We have always understood this as a great miracle. We've always said that, catching the fish is such a great thing and such a great miracle. But I want to look beyond the miracle. I want to look at the spiritual aspect and the theological aspect of what is happening. हमने जब इस चीज की तालीम की तो हमने ऐसे सोचा कि खुदावन ने कितनी बड़ी चमत्कार की है, पर आज मैं आपको उसके आगे गहराई में लेके जाना चाहता हूँ कि रूह की नजरत में इसकी क्या गहराई है और जो खुदा के ज्ञान, जो उसकी खुदा की जो अक्ल है, उसके अनुसार क्या गहरी बातें इसके अंदर छिपी हुई है। Beyond the miracle, beyond the wonder of the miracle that Yeshua performed, there is also something very deeply rooted in the Torah, which Yeshua is trying to show Shimon Kifa. तो चमत्कार के गहराई से भी बढ़कर यीशु जो तोरा में जो गहरी बातें है वो लोगों को तालीम देना चाहते थे। And then in verse 5, Shimon Kifa says to him, says, Master, we have worked and toiled very hard all night
and have taken nothing. Nevertheless, at your word, I will lay down the net. पांचवें कलाम में शिमोन कीफा ने यीशु से कहा, हे गुरु, हे स्वामी, हमने पूरी रात भर मेहनत की, बहुत परिश्रम किया है, परंतु हमें कुछ भी मछली नहीं मिली, लेकिन आपके कहने पर मैं अपनी जाल डालूंगा। Now, why is Shimon Kifa working so hard? And why is he toiling so hard and not getting profit, not getting a good catch, not getting fish enough to sell or to earn a profit? तो ये बात सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिमोन कीफा ने इतनी मशक्कत की, इतनी मेहनत की, और उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, और कुछ मछलियां नहीं मिली, और ना ही उसने कुछ तरक्की की। ऐसा क्यों? And even if he gets a good catch and he makes money on a certain day, then he has to pay taxes to the tax people, and that is another problem altogether. और अगर वो मछली पकड़ता भी है, किस दिन उसका फायदा होता है, तो उसको सरकार को महसूल देना पड़ता है, और उसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसके लिए और भी एक परेशान की बात है। So the people, not only Shimon Kifa, but the people, the fisher people, the traders, and everybody are suffering with inadequacy and suffering somewhat in the land of Israel. तो उस समय इजराइल के जो मुल्क में केवल शिमोन कीफा नहीं, लेकिन वहां के जो लोग जो मच्छी का धंधा करने थे, व्यापारी थे, और उन सबको ये जो महसूल देना पड़ता था, और इसके वो बहुत परेशान थे और बहुत दुख उठाते थे। But nevertheless, Shimon Kifa says, Lord, if you say so, as per your word, I will take the ship out and I will drop the net and we will see what happens. लेकिन शिमोन कीफा कहता है, खुदावन, आपके कहने पर मैं जाली डालूंगा और देखेंगे क्या होता है, उसका फल क्या निकलता है। Now, please, can someone read verse 5, 6, and 7 in Urdu? आप में से कोई भी कलाम 5, 6, 7 पढ़ सकता है। पढ़िए। Amir bhai is not Please there. पढ़िए उर्दू में। कोई तो पढ़िए Hebrew. कलाम जी, 5 के 7 पढ़िए। Robinson bhai. जी। शमाउन ने जवाब में कहा, ए साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन Wow. पतरस ने देखकर बस। हाँ, okay, read verse 8 also. 8वां भी पढ़ शमौन लो। पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। बस। What is the connection between Shimon Kifa saying that I am a sinful person and the miracle of catching the fish? तो अब इस दोनों के बीच में क्या ऐसी कड़ी है कि शिमोन कैफा कहता है कि मैं गुनहगार आदमी हूँ, और ये मछली की बहुत सारी जो जाल में मछलियां पकड़ गए, इनके बीच में क्या फासला है? First of all, in a normal circumstance, he should be in shock, or he should be overjoyed, or he should be running like a madman saying, oh, what a great miracle this is. तो अगर हम देखते हैं कि ऐसे मामूली स्तर पे देखते हैं कि वो पहली बात तो हैरान होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, या तो पागलों की तरह भागना चाहिए कि देखो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। But Shimon Kefa says, forgive me, Lord, depart from me, for I am a sinful person. लेकिन शिमोन कैफा ने कहा, खुदावन तू मुझे माफ कर, मैं तौबा करता हूं क्योंकि मैं एक गुनहगार इंसान हूं। So
from a human point of view, there is no connection being sinful and catching fish. There's no connection at all. तो इंसानी तौर से कि गुनाह मांगना और मछली को पकड़ने के बीच में कोई ऐसा कुछ फासला नहीं हो सकता है। Now let me explain this to you why there is a connection from the Torah. पर तोरा के अनुसार इन दोनों के बीच में एक मिली हुई कड़ी है। And what was Yeshua trying to show Shimon Kepha actually? और यीशुआ सीमोन कीफा को क्या दिखाना चाहते थे? If you'll turn with me to the book of Deuteronomy, अगर व्यवस्था विवरण की किताब में हम आते हैं and we will look at Parsha Ikev just before Kitavo, that is, one second. Or do one thing. Go to chapter 27 in the book of Deuteronomy. तो ड्यूटोनॉमी के 27वें अध्याय में जाइए। And if you read Deuteronomy 20, 27 and 28 and 29, it tells us something very specific about entering the land. और अगर ये ड्यूटोनॉमी 27, 28, 29 पढ़ेंगे 27, 28, 29 तो जिस जमीन पर अब जाते हैं उसके बारे में कुछ खास बातें बताई गई है। And God tells them through the mouth of Moses that when you enter into the land, you will keep the commandments. And when you keep the commandments, the land will respond to your holiness and to your obedience of keeping the commandments. तो खुदा उनसे कहता है कि जिस जगह आप जाएंगे तो जो आप मेरे जो कलाम है उसको तदबील करके चलोगे उसके अनुसार और रास्ताबज होगे तो आप वहां जाकर बहुत तरक्की करोगे और फल लाओगे। Now we are of the understanding that the land of Israel belongs to the Jewish people. हमें इस बात की समझ दी गई कि इजराइल की जो मुल्क है वो यहूदियों का है। It does not belong to the Jewish people. तो ये यहूदियों का नहीं है। It belongs to God. God says this land is mine. ये जमीन ये खुदावन कहता है कि मेरी अपनी जमीन है। And the land responds directly to the commandments of God. और ये जो जमीन है ये मुल्क है ये जो खुदावन जो कहता है उसके अनुसार वो चलती है। The land has got a fire, it has got the zeal. The land of Israel has got a fire and a zeal to do the commandments and to perfectly obey the voice of God. तो इजराइल की जो जमीन है उसके अंदर एक आग और जुनून है जो खुदा ने कहा है उसके रास्ताबद को पूरा करने के लिए। If anybody enters the land of Israel and does not do the commandments of God, the land will not respond accordingly. अगर कोई इजराइल में आता है और खुदा के रास्ताबद को के अनुसार नहीं चलता है तो वो जो वहां की जो भूमि है जमीन है वो उसको फलवंत नहीं होने देगी। Whether it's the land, it's the water, it's the air, it's the trees, the animal, everything in the land of Israel belongs to God and answers and responds to God perfectly. चाहे इजराइल में समंदर हो वहां का पेड़ हो पौधा हो और या तो वहां की जमीन हो वो केवल खुदामंद के रास्ताबद के अनुसार ही चलती है। That is why God, through the mouth of Moses, told them, when you enter into the land of Israel, keep the commandments, otherwise the land will not respond to you and the land will throw you out. इसलिए खुदावन ने मूसा के मुंह से कहा था कि जब तुम इजराइल में जाओगे तो अपने लोगों से कहो जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उनको सारी रास्ताबंदी करो उसके अनुसार चलो और तब जाकर तुम फलवंत होगे नहीं तो वहां की जमीन तुम्हें फलवंत नहीं करेगी और तुम्हें फेंक देगी बाहर। In chapters 27 and 28 of Deuteronomy, God gives the blessings and the curses. If they follow the commandments perfectly, there will be blessings. If they break the commandments, there will be the curses. और खुदावन मूसा के द्वारा 27-28 ड्यूटोनॉमी में उन्हें कहता है
कि ये अगर तुम दस्तावेज के अनुसार चलोगे तो तुम बरकत की बारिश पाओगे, वरना तुम पर भारी हाय आएगी। Now in 28, can you read verses 1 to 6? डिटरोनॉमी के 28 में कोई भी आपसे 1 से लेकर 6 कलाम पढ़ सकता है। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चपाइयों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। आमीन। Please turn to Deuteronomy chapter 11 and read verses 10 to 12. डिटरोनॉमी के 11 अध्याय में आएंगे और 11 और 12 कलाम पढ़ेंगे। लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। बरूक हशीम। Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem। I have all understanding what we are trying to learn today. क्या आप खुद समझते हो कि हम क्या आपको तालीम देने की कोशिश करते हैं? Now read 13 till 17. Continue. 13 से 17 कलाम पढ़िए। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चुपाइयों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। सो तुम खबरदार रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहकर और मबूदों की इबादत और प्रस्तुश करने लगो और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। Baruch Hashem. इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिद हो और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना। आमीन। Amen. Amen. So now, why Peter represents the children of Israel who are suffering in the land because everybody in the land is not doing the commandments of God. तो हम देखते हैं यहाँ पर पतरस जो शिमोन था वो सारे इजरायली की ओर से एक प्रतिनिधि कर रहा था कि उन लोग बहुत परेशान थे और दुखी थे इस कारण
So Yeshua now has taken Peter, Shimon Kepha, and he's done a miracle, and he's showing Shimon Kepha that if you do the things of God, the water, the land, the air will respond to you with its blessings. तो अब यीशु हमाशिया पतरस सिमोन को सिखा रहे हैं कि अगर तू खुदा की बातों को अमल करे और रास्ता बस करे, उसके हर जो कलाम उसने दिए हैं, तो नदी, जमीन, पेड़ पौधा, सारी जमीन वो फल लाएगी और तू सरफराज होगा. Therefore, now Shimon Kepha realizes that he's a sinful person because he's not keeping the commandments of God, although living in the land of Israel. तो अब ये बात का समझ सिमोन पतरस कैफा को आ चुकी है, क्योंकि वो इज़राइल के देश में रह रहा है, पर जो खुदा के जो दिए हुए कलाम के अनुसार रास्ताबंद नहीं है, इसके लिए वो तौबा कर रहा है. That is the connection between being sinful and not being blessed in the land, my friends. तो इसके लिए ये हमें समझना चाहिए कि वहां रहकर भी सरफराज नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं कर रहा है, और क्योंकि वो कलाम के अनुसार नहीं चल रहा है. And then he tells all of them, fear not, from now onwards you will become fishers of men. In other words, he's saying that since you'll understand what it is to keep the commandments and the land respond to you and the blessings flow, now you will go and you will also convert other men and women, so they will all be a rectification of the Torah of God in the land of Israel. तो अब यीशु ने सिखा रहा है कि अब तुम्हें समझ आई है और तुमने तौबा किया है, और अब से तुम ये सरफराज ये सारी बातों को अमल करोगे और कलाम के अनुसार चलोगे और रास्ताबंद होगे, तो सारी चीजें, ये सारी जो जमीन और ये झाड़ पेड़ पौधे, ये बहुत सारा फल लाएंगे और तुम बहुत तरक्की करोगे और तुम औरों को भी सिखाओगे और सब मिलकर यहाँ सरफराज हो जाओगे. So now they have changed, their lives have changed, and they've realized that if I follow Yeshua, then there will be a change in the land of Israel. A great thing is happening in the land of Israel by Yeshua coming. तो अभी उनका दिल बदल चुका है और अब इन्हें इस बात की तालीम हो चुकी है कि हम यीशु की बात मानेंगे तो पूरा इज़राइल बदल जाएगा और हमारे द्वारा भी इज़राइल में एक बहुत बड़ी बेदारी आ जाएगी. Read verses 11 and 12. अब 11 और 12 कलाम पढ़िएगा. Which book, please? Luke chapter 5, verse 11 and 12. वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए. जब वो एक शहर में था तो देखो, कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है. Okay. So now Shimon Kepha and Andres and Yaakov and son of Zebedee and all these people have followed Yeshua, and they are following him because now they see a new hope, a new life, and they're wondering what is happening, and they enter a certain city now. तो अब शिमोन पतरस, अंद्रियास और दूसरे जो और सारे उनके साथी थे, उनके अंदर एक नई रोशनी आ चुकी है, एक खुदा की समझ आ चुकी है और एक नए शहर में सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. And here they meet somebody who comes to Yeshua saying that he's sick with this disease called leprosy. और यहाँ पर किसी ऐसे आदमी को मिलते हैं जो मरीज है, बीमार है और वो कोढ़ का मरीज है. Now, this word leprosy in the Bible is not like the leprosy that you see in this world today. It's a very different disease. तो आज जो हम इस पूरी दुनिया में देखते हैं जो कोढ़ का मरीज, तो उस जमाने के कोढ़ और इस कोढ़ में काफी फर्क है. In fact, it is not the same disease. हालांकि ये वही बीमारी नहीं है. The disease called leprosy in the Bible is the word madzora, which means it's a spiritual condition in a human being.
और जो बाइबल की जो कोड़ की बीमारी, इसका नाम है मत्सुरा। इसका मतलब जो उसकी जो रूह पाक, जो उसकी रूह की जो हालात है, उसको दिखाता है वो। So let me explain something of this biblical leprosy or Matsara to you. तो इसके बारे में आपको थोड़ा कुछ आपको आपके साथ में आपको बांटूंगा, बताऊंगा। A lot of this is written in the book of Leviticus, Vaikra. तो लेविटिकस की किताब में बहुत सारी बातें लिखी है इसके बारे में। Now, how does somebody contract this disease called Matsara or biblical leprosy? और कोई इस मत्सुरा या जो बाइबल के अनुसार जो कोड़ है, इसका मरीज कैसे बनता है? It is because of the evil intentions and evil speech of the human being. जो इंसानियत की जो गंदी चीजें, उनकी गंदी आदत है और जो पाप करने की बात है, उसके कारण होता है ये। When the speech is evil, it brings out impurity in that person's soul. जब अल्फाज तुम्हारे मुंह से बुरे होते हैं, तो उसके रूह के अंदर भी वो गंदगी आ जाती है। The other way of contracting this Metzora is when we go and touch impure things, impure people, and also touch dead bodies. और दूसरा ये मज्जूरा इसलिए होता है जब हम किसी मरे हुए इंसान को छूते हैं और गंदी चीज को छूते हैं और गंदे लोग से मिलते हैं तब। Now, this world is full of people who are doing horrible and bad and wicked things. अब ये पूरी हम देखेंगे पूरी कायनात में ऐसे लोग हैं जो गलत गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरी बातें करते हैं, उनसे भरी हुई है। But they do not have the sense of coming to God, knowing God, and purifying themselves by word of prayer and by reading the Torah and the word of God. पर उनके अंदर ये रोशनी नहीं है कि खुदा उनके पास आए, खुदा से तौबा करे और खुदा का तोरा पढ़े, उसके कलाम पर वो जोर दें, ऐसी बात नहीं है। But if we spend time with these people, we share things with these kind of people, then we also get contaminated with that tuma or that impurities that is coming out from those people. और जब हम इनके साथ में हम करीब आते हैं, तो जो उनके अंदर जो मैलापन है, वो गंदगी है, उसका असर हमारे पर भी पड़ जाता है। Because we'll start talking like they talk, we'll start thinking like they think, we'll start doing the things they do, and that impurity spreads to us also. कि जैसे वो बातें करते, हम बातें करते हैं, जैसे वो सोचते, हम सोचते हैं, और जैसे वो बोलते हैं और सब कुछ करते हैं, उसका असर हमारे पर पड़ जाता है। We have to be of a very high spiritual tahara purity level, that impurity does not affect us. हमारे जो रुआ का जो औदार है, औदा है, उसे हमें तहारा के अनुसार, एक ऊंचे औदे के अनुसार रखना चाहिए। In other words, we have to be something like Yeshua and his purity level, so that the other people would be able to come to us, and the power of God through us would be able to heal or cleanse the other people. जैसे यीशुआ का पाक या औदा था, इस दुनिया में थे, वैसे हमें भी वैसे औदा रखना चाहिए, ताकि जो बीमार मरीज लोग हमारे पास आएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। Okay, so this Metzora now develops in a person because the evil in the heart, the darkness of the mind, brings evil speech and evil actions. तो ये मैत्सुरा ऐसे होता है कि जब तुम्हारे दिल के अंदर गलत बातें हो और मन के अंदर अंधेरा हो, तो ये उसका दोनों का असर तुम्हारी जबान से गंदे बातें निकलना शुरू हो जाते हैं। And what is brought in the heart is thought in the mind, is spoken by the tongue, it's done with the hands, and this process, this entire evil process, brings contamination and impurities on your soul that you cannot see with your physical eyes. जो दिल में जो बुरी बातें होते हैं और मन के अंदर जो गलत सोचने की बातें होते हैं और जुबान पे जो गलत शब्द आते हैं, ये सारी चीजें हमारे रूह के ऊपर ऐसा गलत असर पड़ता है, गंदा असर पड़ता है, जो हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। And in a spiritual way,
your soul now has got patches of dirt and impurities stuck on it, and it's making you heavy. It makes a person depressed. It makes a person sick. It makes a person unhealthy. It makes a person go completely, impure and wrong in life. तो रूहानी तौर के ऊपर ये हमारे प्राण के ऊपर, रूह के ऊपर दाग धब्बा डालते हैं। इसके कारण वो आदमी परेशान होता है, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो उदास होता है और उखड़ा हुआ होता है और एक हारा हुआ इंसान होता है। When that internal impurities gets too much and gets very heavy, then it starts breaking out from the inside to the outside in the physical realm. तो जब ये अंदर की जो गंदगी और जो ये मैलापन है ये ज्यादा हो जाती है, तो अंदर से बाहर आकर उसका असर पड़ जाता है। And when it breaks out in the physical realm, then it breaks out like a disease on the skin of a person. और जब ये अंदर से फूटकर बाहर निकलती है, तो शरीर के ऊपर एक बीमारी, रोग आ जाता है। And this is called Metzora. और इसे मेट्जोरा कहते हैं। So the solution and the healing of the Metzora is to cleanse your spiritual soul and to remove the impurities and the diseases which are in your soul, not in your body. तो मेत्सुरा को चंगाई ऐसे प्राप्त करना कि शरीर के द्वारा नहीं, लेकिन जो अंदर, रूह के अंदर जो गंदगी है, मैलापन है, उसे साफ करके धोने के द्वारा। That is why we need and we have to ask our Lord Jesus, Lord, cleanse me with your blood, not the body, but our soul inside needs to be cleansed with the blood of the Lamb, with blood of Yeshua. खुदावन ईश्वर से मांगना चाहिए कि तू मेरे शरीर को नहीं, लेकिन मेरे रूह को तेरे पाक लहू से उसे धो दे और उसे तू पाक बना दे। And once we are cleansed inside and we are made clean, and our garments inside, our spiritual garments and our soul start shining like the divine light of God Himself. तो जब हम खुदा से मांगेंगे कि तू तेरे पाक लहू से मेरे रूह को धो दे, तो जब हमारा रूह पाक होता है तो मानो वो पाक के कपड़े पहन लेते हैं और वो अंदर से चमकना, रोशनी आती, पाक रोशनी और खुदा का जलाल अंदर से बाहर बहने लग जाता है। This is how a person fills his soul, his being with divine light. तो ये एक तौर तरीका है कि एक इंसान अपने जो रूह को खुदा के नूर से, खुदा के जलाल से अपने आप को भरता है। So this person comes to Yeshua and says, Lord, if you would be kind enough, Lord, please make me clean. तो वो मरीज यीशु के पास आता और दरखास्त करता है कि मुझ पर रहम कर, मेहरबानी कर और मुझे तू चंगाई दे। And Yeshua puts his hand out and touches him, saying, I will you be clean. And immediately the leprosy departed from him. और यीशु अपना हाथ बढ़ाता है, उसे छूता और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, और तुरंत ही वो इंसान शुद्ध हो जाता है। And now not only the physical manifestation of the impurity is gone, but the internal man also has been cleansed in his soul. तो अब उस मरीज का केवल बाहर का जो शरीर के दाग धब्बे निकल जाते, उतना ही नहीं, लेकिन उसके अंदर के जो दाग धब्बे थे वो भी अब साफ हो जाते हैं। But this man now has to learn to maintain that purity in his soul. पर अब इस मर्द को एक जरूरी है कि उसे उन चीजों को हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। And see what Yeshua tells him. He says, read 13 and 14, in fact. Read verses 13 and 14 in Urdu. आइए 13 और 14 कलम पढ़ेंगे हम लूका का। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहन को दिखा, और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है
रखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। Baruch Hashem. Amen. Amen. So Yeshua tells them, he says, go now immediately and keep your mouth quiet. Do not even speak. Do not tell any man anything. Be quiet, because whatever words that come out from your mouth now will be words of impurities. तो अब यीशु कहता है उससे अपने मुंह को बंद कर जबान पर ताला रख और जा, और जैसे मूसा ने शरीयत में कहा है उसे उस बलि कुर्बानी को चढ़ा। And you're all understanding what I'm saying. That means this person has developed so much of impurities by evil speech. And Yeshua tells them, do not talk anything. तो क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? ये व्यक्ति के इंसान के अंदर इतनी गंदगी है, तो यीशु कहता है अपने मुंह को बंद कर, अपने जुबान पर ताला लगा, एक भी अल्फाज मत बोल। And then he says, go and show yourself to the priest, because it is the priest, the Kohen, that has to search him and declare that he's clean enough to come back to partake of the table of the Lord. तो यीशु कहते हैं जा अपने आप को उस काहिन को दिखा और वो तेरी जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद में तो खुदा के जो रोटी और दाखरस में हिस्सा लेना उसके में तो शामिल हो सकता है। So friends, there is so much in the New Testament that is connected with the Old. It's all rooted within the Torah. It is not disconnected from the Torah. तो मेरे अजीज दोस्तों, इतनी सारी बातें जो नई करार की जो है वो पुराने करार के साथ में एक साथ जुड़ चुकी है, ये कोई अलग नहीं है, ये तोरा में शामिल है। And Yeshua himself says, go and offer the sacrifices that is mentioned by Moses in the Torah as a testimony. और यीशु खुद कहता है कि जैसे मूसा ने शरीक में कहा है कुर्बानी देने के बारे में, तो गवाही के रूप में जा और इस कलाम को तो पूरा कर दे। Now, when such great things are happening in the land of Israel, and the people are watching and they're seeing and they're looking for hope, because everyone is expecting the Messiah to come. तो अब देखिए कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें हो रही है पूरी इजराइल में, और इजराइल के लोग इंतजार कर रहे थे कि वो बहुत परेशान थे कि वो चाहते कि मसीहा कब आएगा और हमें ऊंचाई पर उठा ले जाएगा। But something great is happening. Something in a very great level is happening in the Galilee through the hands of Yeshua. तो गलील के उस झील के किनारे के पास उस गांव मुल्क में यीशु के द्वारा बड़ी बड़ी बातें हो रही है अब। Okay, so good. Today we learned in this one chapter 2 connections to the Old Testament. अब इस आज एक चैप्टर में हमने 2 पुराने बातें पुराने करार की हमने तालीम पा ली है। This is a midrash on the Torah. तो ये तोरा पर मिद्राश है। Would you explain? What is the meaning of midrash? Midrash means an explanation, an expounding, analysis, an opening up, and an explanation of the Torah. तो मिद्राश का मतलब ये है कि तोरा को खोल देना, उसे गहराई से, और उसकी जो बेहतरीन उम्दा बातें हैं उसे खोलकर सबके सामने पेश करना। So actually the New Testament is a midrash on the Old Testament. तो जो नया करार है वो पुराने करार यानी ओल्ड कवेनेंट ओल्ड टेस्टामेंट की वो मिद्राश है। It is only Yeshua who's living the perfect Torah, and therefore with his living he is explaining to us the explanation of the laws of Moses. क्योंकि यीशु ने जो जीवन बिताया वो बिल्कुल बहुत ही ऊंचे, उनका औहदा बहुत ही ऊंचा था, पाक और उम्दा और बेहतरीन था, तो वो हमें सिखा रहा है और उनके द्वारा हम ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। So I'm not going to continue with this chapter because this chapter has a lot more, friends. Just enough for today. Okay, we also crossed our time. So if there's anything you want to ask, anything you want to share, please go ahead. तो आज के लिए मैं यहीं पर रुकूंगा और हम आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
First of all, we have all understood what we're trying to learn today. तो क्या आप पहली बात आप समझ चुके हो कि हम लोग क्या आज किस बात की हम तालीम ले रहे थे आज? We're learning the New Testament, but it's more Jewish than what we think it is. हम नए करार नए टेस्टामेंट तक सीख रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि ज्यादा करके इस पर पूरा यहूदियों के असर पड़ चुका है। ओल्ड टेस्टामेंट का इस पर गहरा असर है। Anything you want to say? Anything you want to ask? आपके पास कुछ सवाल है, कुछ जवाब है, आप आगे बढ़ सकते हैं। No questions, anybody? Okay, so if there's no question, then we can close, and I'll send all the recording. Okay. I'll send all the recording. No problem. अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे, और ये जो मुदरसा का जो सीखा है हमने, इसको हम रिकॉर्डिंग में भेज देंगे। Thank you, sir. Thank you so much. Welcome. रवि जी, थैंक यू Thank you, रवि जी। सब चीजें बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी लगी आज की, और हमने सीखा है कि किस सुनाई नहीं दे कुछ। आमिर जी। जी मैम, मैं आई एम हैप्पी टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे सर जी ने, रब्बी जी ने, किस तरह से ये एक चैप्टर मिदराश है उन दो चैप्टर्स का। माइंड ब्लोइंग, रियली ब्लेस्डफुल। और कौन? और ये जो वर्ड इब्रानी के तहारा यूज किया गया, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? तहारा और मितजोरा, आई थिंक सो। प्योरिटी, मितहारा। ओके सर। तहारा। Tahara and Tuma. Impurity and purity. ठीक है। दूसरा वर्ड है तुमान। तुमा। तुमा मतलब अशुद्ध। तुमा। और तीसरा वर्ड है मत्जोरा। मत्सोरा। ठीक है जी। और कुछ चीज पूछना है, पूछ लीजिए प्लीज। ये सर कैसे लिखा है? मेरा ये कनेक्शन कट गया था। प्लीज, मत जोरा कैसे लिखना था?
Mem, मत Tade, ओके सर थैंक यू Vav, थैंक Resh, K. ठीक है जी? ओके सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो Very good. Recording, I will send the recording to you. ओके थैंक यू सो मच सर All best. Good night. Good night. Okay. गुड नाइट लाइला Good तो night. Laila Leher Tov. You can all stay. You can all log off. Francis, you can stay back. Pari and Francis. Good night, everybody. Log off. Good night. Good night, Rabbi ji. Laila Tov. Laila Tov. Laila